Hi, good morning. Kem cho? All good? Take care of yourself because now we are in the spreading week of COVID-19. Please take care of yourself. Stay at home only. Our area is in red zone and government has taken some serious step, and that is why our internet speed is horrible. So we cannot take live lectures for 2-3 days, and that is why I am posting the video. So please take care of yourself, take all the necessary precautions, and let us start our study. Today we are continuing with exercise 1.2, 2.2 sorry, and last lecture we have seen exercise 2.1. In that we have seen how to find the trigonometric value of the trigonometric function for various angles. I have given you the homework also. Please solve all the questions and go through all the important points. Next thing we have seen was the quadrant wide angles, sign of the angle. In the first angle I have given you the shortcut also, all silver tea cups. This is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. In first quadrant all are positive. In second quadrant sine and cosec are positive. In third quadrant tan and cot are positive, and in fourth quadrant cos and sec are positive. Now in first quadrant, what is the angle range? Range of the angle is from 0 to 90 degree. This is from 90 to 180 degree. This is from 180 degree to 270 degree, and this is from 270 degree to 360 degree. Now this we can write also in radian. 0 to pi by 2 radian, pi by 2 to pi radian, pi to 3 pi by 2 radian, and 3 pi by 2 2 pi radian. Getting it? So if we have given the range of the angles, then we have to find out in which quadrant it will lie. And on that basis sorry, on that basis we can see, or we can find out the angles or the trigonometric functions would be positive or negative. This is very important. This is we have seen in our last lecture. Okay, please remember this. So starting with exercise 2.2, question number 1. 2 sin a equals to 1 equals to root 2 cos b. 2 sin a equals to 1 equals to root 2 cos b, where pi by 2 less than a less than pi. A lies between pi by 2 and pi, and b lies between 3 pi by 2 to 2 pi. Pi by 2 is 90, pi is 180. So this is second quadrant. 3 pi by 2 is 270 and 360. So this is fourth quadrant. Okay. Now we will see. First we will take this. 2 sin a equals to 1 and also 1 equals to root 2 cos b. So sin a equals to half cos b equals to 1 by root 2. Okay, now we have got the value of sin a and cos b. What value we need? Cos a, cos b, tan a, tan b. So cos a, we have sin a, we have to find out cos a and tan a. We have cos b, we have to only find out tan b. समझ रहे क्या बात? sin a मिल गया, हमने को cos a और tan a चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से. cos b मिल गया, अपने को सिर्फ tan b चाहिए. फिर क्वाड्रेंट देखेंगे और उसके बाद अपन साइन अप्लाई करेंगे. हाँ, ध्यान से समझना. अभी इसके लिए दो तरीके हैं. एक तो मैं जो बता रहा हूँ ट्राइंगल मेथड, जो सबसे आसान और टाइम कम से कम लेगा. दूसरा है आइडेंटिटी, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में किया था. साइन आपको दिया हुआ है, साइन से आइडेंटिटी यूज करके कॉस से निकालो. कैसे? तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर. फिर आपको मिलेगा कॉस. कॉस मिल गया तो टेन निकालना ईजी है. टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस है. हो गया काम. फिर आपको कॉस मिला है, कॉस से आपको निकालना पड़ेगा साइन ए. कैसे? तो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी. यहाँ से आपको साइन बी मिलेगा. टेन बी निकालोगे तो टेन बी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस बी. लेकिन ये लंबा मेथड जाएगा, जैसे मैंने बताया.
जो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रायंगल मेथड वो समझना। ये फॉर एंगल ए, हाँ एक ट्रायंगल बना दिया, ये आपको शायद स्कूल में बताया होगा। ये एंगल है ए, बराबर। साइन है मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इसका ऑपोजिट ये है, हाइपोटेनस ये है, ये 90 डिग्री है समझो। तो ये कितना बचेगा, इसका स्क्वायर 4 माइनस 3 रूट आएगा रूट। समझ में आ गया। अभी यहाँ से आपको तीनों साइड मिल गया। अभी आपको क्या चाहिए, कॉस है इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ठीक है, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपो, और tan ए इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये मिल गया आपको ए का। अभी बी के लिए बना लेते हैं। ये कैसे मिला, तो पाइथागोरस से मिला, ठीक है ना। ये एंगल आ गया बी, बी में कॉस दिया है, ये अपने को एडजेसेंट, और ये हाइपो। अभी √2 का स्क्वायर 2 और ये 1, तो ये भी हो जाएगा 1। ये 90 डिग्री पाइथागोरस लगा दो फिर से। अभी कॉस भी तो है ही अपने पास, सिर्फ tan भी चाहिए। tan b is 1/1, that will be 1 only। सब वैल्यूज आ गया, tan a आ गया, cos a आ गया, cos b है अपने पास, tan b सब वैल्यू आ गई। इसके लिए अपने को इनफ। अभी आ जाओ साइन देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइन कैसे अप्लाई करें, ए कौन से क्वाड्रेंट में, ए लाइज बिटवीन 90 एंड 180, दैट इज ए इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट ऑल सिल्वर, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, ये दोनों क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अभी आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ ऑल सिल्वर टी कप, कॉस एंड साइड पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan क्या आ जाएगा, tan विल बी नेगेटिव, tan will be negative. Okay, now we have to find out value of this. Tan A plus tan B upon cos A minus cos B. चलो वैल्यूज डाल दो। tan A minus 1 upon √3 plus tan B minus 1 divide by cos A minus √3 minus √3/2 माइनस cos b माइनस cos b, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबके माइनस को कॉमन निकालो, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, और ये दोनों माइनस कट हो जाएंगे। सुनो हाँ, एलसीएम ले रहा हूँ, ये माइनस का साइन कॉमन, ये आएगा 1 प्लस √3 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई इसका माइनस का साइन कॉमन, माइनस का साइन कॉमन, ये आएगा √3 इंटू √2 माइनस यहाँ पे आएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 2√2। ये मैंने ज़्यादा सिंपल किया, या तो मैं सिर्फ √2 कॉमन निकाल के ले सकता था, ठीक है। ये दोनों माइनस का साइन कट कर दो, दोनों माइनस का साइन कट कर दो, इसको लेके जाओ ऊपर और इसको लेके आओ नीचे। थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। दिस विल बी 2√2 इंटू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू, ये दोनों में से √2 कॉमन निकाल दो। देखो ये √3 तो नीचे आई गया बराबर, ये दोनों में से मैं √2 कॉमन निकाल रहा हूँ, √2 कॉमन, तो √2 इंटू √3 ये हो जाएगा √6। समझ में आ रहा है। और बचेगा क्या इधर, √3 माइनस 2 बराबर। अभी ये और ये भी कट हो जाएगा, 2 3 तो नीचे √3 बचेगा, √2 और √6 कट हो जाएगा, नीचे √3 बचेगा। सो आंसर विल बी 2 ब्रैकेट 1 प्लस √3 डिवाइड बाई √3, और यहाँ पे ये प्लस होगा √3 प्लस 2। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर। कुछ भी डाउट होगा तो पूछो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। और एक ऐसा क्वेश्चन है, सेम मेथड से जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन करते हैं अपन सेम मेथड का, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से जाना है। ट्रायंगल मेथड से जल्दी हो जाएगा, फटाफट होएगा, और मार्क्स उतने ही मिलेंगे, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे आपके।
क्वेश्चन नंबर 2, sin A upon 3 sin B upon 4 equals to 1 upon 5. A and B are the angle in second quadrant. A comma B are in, देखे रखा, देखो second quadrant, they are in second quadrant. Then prove that 4 cos A 3 cos B equals to -5. ठीक है, चलो आ जाते वापस, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. sin A upon 3 equals to 1 upon 5. sin B upon 4 is also equals to 1 upon 5. इसको इधर जाने दो. तो sin A is equal to 3 upon 5 and sin B is equal to 4 upon 5. 4 upon 5. ठीक है, हो गया. प्रूव करना है, दिस वी हैव टू प्रूव दैट. चलो वापस ट्रायंगल बनाते हुए कौन सा cos A और cos B, sin A sin B, cos A और cos B चाहिए. चलो cos A निकालते हैं. ये एंगल आएगा A. चलो A ऑपोजिट अपॉन हाइपो, सो दिस विल बी 4. सिमिलरली sin B, ये एंगल है B, दिस इज ऑल्सो अपोजिट अपॉन हाइपो, मतलब ये आएगा 3. पाइथागोरस लगाना है, सिंपल सा बात. ठीक है, अभी क्या चाहिए अपने को, cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपो, cos B एडजेसेंट अपॉन हाइपो. आ गया. अभी मुझे बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है. सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल सिल्वर मतलब साइन और कॉसेक. साइन और कॉसेक तो है, ये कॉस है, ये आएगा नेगेटिव, ये भी आएगा नेगेटिव. चलो व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट 4 cos A plus 3 cos B equals to -5. So left hand side 4 cos A plus 3 cos B, सब्स्टिट्यूट करो. 4 into cos A -4/5 into 3 -3/5, मल्टीप्लाई कर दो. 4 4 -16/5 प्लस माइनस 9/5 ऐड करो, दोनों में 5 -25/5 विच इज इक्वल्स टू -5 विच इज इक्वल्स टू. इजी, समझ में आ रहा है क्या बात. इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट देख के साइन देने का. और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अपने को निकालेंगे ट्रायंगल मेथड से बाय पाइथागोरस. 2 साइड आपको मालूम रहेगा, तीसरा साइड पाइथागोरस से निकाल, उसका दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एक सम आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखता हुआ वाला होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3. tan थीटा इक्वल्स टू हाफ. Evaluate evaluate 2 sin theta plus 3 cos theta upon 4 cos theta plus 3 sin theta. ठीक है, अभी उसने बोला नहीं है कुछ भी, तो कंसिडर दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. कंसिडर दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और निकालो सबके सब वैल्यूज पॉजिटिव काउंट करके ये आपको फाइंड करना है. दिस इज होमवर्क फॉर यू. आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज होमवर्क. हाँ, आपको ये इजी हो जाए. क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने 10th स्टैंडर्ड में किया है. एलिमिनेट थीटा, याद है क्या, एलिमिनेट थीटा ऑफ द फॉलोइंग. चलो मैं इसका एक सम करता हूँ, 4th वाला. x इज इक्वल टू 5 plus 6 cosec theta and y is equal to 3 plus 8 cot theta. ये तो इजी है, कोई टेंशन ही नहीं है उसको. बाकी का आप ट्राई करोगे. रेस्ट ऑफ द सम, इसका रेस्ट ऑफ द रेस्ट इज होमवर्क फॉर यू. आई विल पोस्ट इट इन दी बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड. ठीक है,
मैं आपको इसके बाकी के सब अभी लेक्चर होने के बाद वीडियो इसमें डालता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ। चलो ये आगे सॉल्व करते हैं। इजी है, खाली देखने में थोड़ा सा दिख रहा है कि कैसे करेंगे, बट इजी, 2 मिनट में हो जाएगा। थीटा को एलिमिनेट करना है। पहले देखिए फाइव को इधर लेके आओ, सो दिस विल बी x माइनस 5 इज इक्वल टू 6 cosec थीटा। x माइनस 5 बाई 6 इज इक्वल टू cosec थीटा। ये आ गया मेरा इक्वेशन 1। समझा क्या? पहले 5 इधर लाया, फिर 6 को डिवाइड करें। यहाँ पे भी सेम, y माइनस 3 इज इक्वल टू 8 cot थीटा। तो y माइनस 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू cot थीटा। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। बराबर है क्या? 1 प्लस cot का वैल्यू क्या है? y माइनस 3 अपॉन 8 का स्क्वायर, cosec का वैल्यू x माइनस 5 अपॉन 6 दी होल स्क्वायर। चलो ये इसको वो बाजू लेके जाओ। 1 इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 6 द होल स्क्वायर माइनस y माइनस 3 अपॉन 8 द होल स्क्वायर। हो गया, थीटा निकल गया। आगे सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत है तो इसको आगे खोल के सॉल्व कर दो, हो जाएगा। या तो ऐसे ही रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपांड करने का ज़रूरत नहीं है, 2 मार्क के लिए आएगा, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलो एक सम और आगे देखते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे सम्स हो ना, इट इज़ बेस्ड ऑन दी 10th स्टैंडर्ड ओनली। फिर भी क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूँ मैं आपको, बाकी के सब मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप सॉल्व करना आज कंपलसरी। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 days ये नेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वी विल टेक लाइव लेक्चर्स एज बिफोर। और हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि एक टाइम टेबल बना के आपको भेजें, वो टाइम टेबल आपको फॉलो करना है रोज़ का रोज़। हम सब टीचर से बात करें, बिकॉज ये क्वारंटाइन में काफ़ी सारे टीचर्स फंसे हुए हैं जिनके पास घर पे ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लेक्चर्स ले सके। इसकी वजह से हम थोड़े से स्टक है, बट हमारा फुल एफर्ट है कि हम ट्राई करके आपका स्टडी जो है फटफट चालू करवा दें। ओके और एक चीज़ मैं आपको एक एडमिशन फॉर्म भेज रहा हूँ, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। आप वो एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करके भेजना है, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हमारे पास। हाँ भाई इतने बच्चे हमने रजिस्टर किए। फीस का अभी तक हम कोई बात नहीं करें। हाँ हो सकता है हम एक नॉमिनल अमाउंट अभी चार्ज करें आपके पास ये 2 महीने के लिए, तो आपका ये टाइम यूटिलाइज हो, और हमको भी जो खर्चा लग रहा है उसके लिए हम थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज आपसे चार्ज करेंगे। उसके बाद अगर आपको एडमिशन लेना है तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वो हम बात कर लेंगे। ओके, विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ 2 sin स्क्वायर, अभी मैं निकाल देता हूँ, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0, फाइंड दी परमिसिबल वैल्यू, फाइंड दी वैल्यू ऑफ cos थीटा। क्या बोला है? cos थीटा का वैल्यू फाइंड करने बोला है। चलो पहले तो sin थीटा निकालते हैं और फिर cos थीटा का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। हाँ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। sin थीटा कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, बराबर। सो दिस कैन बी रिटन एज sin थीटा इक्वल्स टू 0 और 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 2 sin थीटा इक्वल्स टू -3, sin थीटा इक्वल्स टू -3/2। ऐसा कोई एंगल पॉसिबल नहीं, क्योंकि साइन का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, बराबर ना। -3/2 पॉसिबल नहीं है, तो साइन का एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो है साइन 0। चलो अभी इसको अपन करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
cos square theta, sin square का वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू, तो cos square theta इक्वल्स टू 1, cos theta इज इक्वल टू प्लस है माइनस 1। सिंपल आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके अंदर की जो बाकी के सम्स हैं, टोटल अभी इसके अंदर सम है वैसे तो 15 सम्स है, लेकिन इसमें 15 वाला जो सम है ना वो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, जो अपन ने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में ट्रिको में किया था, ठीक है। फिर भी ये मैं आपको करवाता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 15 में सब क्वेश्चन 12 है, तो उसमें से कुछ सम्स करेंगे। फिलहाल मैं आपको जो सम्स भेज रहा हूँ ये इसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब दैट इज़ आई थिंक अप टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको करने को मैं दे रहा हूँ। आई होप ये इजीली हो जाना चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर से आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 से चालू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सेकेंड चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स। 2 चैप्टर्स कौन से? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। अभी मैं मैथ्स पार्ट 2 के ऊपर जाता हूँ और पार्ट 2 का चैप्टर चालू करता हूँ। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर और लगेगा, मतलब और 2 लेक्चर के बाद ये चालू हो जाएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। सी यू सून, बाय बाय।